Hello students, now I am starting exercise 13.5, chapter 13, surface areas and volumes. So in this sequence, first question, a matchbox measures 4 cm by 25 cm by 1.5 cm. What will be the volume of a packet containing 12 such boxes? So firstly we have to find volume of one matchbox. So L is given, length, width, height, all the three dimensions are given. L is 4, B is 2.5, L is 4 cm, B is 2.5 cm and H is 1.5 cm. So firstly we find volume of one matchbox. So one matchbox का volume क्या होगा, क्यूबाइड है. So cuboid volume is L into B into H. Sorry. So L is 4 cm, B is 2.5 cm into H is 1.5 cm. 4 और 2.5 multiply 10. 10 into 1.5 means 15 cm cube. And now we have to find the volume of one packet in which 12 such match boxes. एक पैकेट है जिसमें 12 मैच बॉक्सेस हैं, उनका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ पैकेट ऑफ 12 मैच बॉक्सेस. 12 मैच बॉक्सेस. क्लियर? मीन्स जब वन पैकेट का वॉल्यूम 15 है तो 12 का वॉल्यूम मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई. सो 12 इंटू 15 सेंटीमीटर क्यूब. 12 इंटू 15 180 centimeter cube. This is question 1. Second question. Now question 2 is a cuboidal water tank is 6 meter long, 5 meter wide and 4.5 meter deep. Length, width, height, all the three dimensions are given. How many liters of water can it hold? कितने लीटर वाटर होल्ड करेगा? So firstly we have to find capacity of cuboidal vessel. ठीक है, जो cuboidal टैंक दिया हुआ है उसका हमें कैपेसिटी फाइंड करना है, कितने लीटर पानी आएगा. Capacity, volume both are same, so we are find capacity of cuboidal tank and we know cuboid volume is LBH or iron multiply. So what is L, B and H? L is 6, B is 5, H is 4.5. So multiply 6 into 5 into 4.5. 6 5 ja 30 and 30 one decimal removed, so 45 3 ja 135. That is in meter cube and we have to convert into liter, so we can multiply by 1000 because 1 meter cube equals to 1000 liter, so it will equal to 135 into 1000 liter. Here in bracket we can write 1 meter cube equals to 1000 liter. Clear? Now 135 into 1000, so 135,000 liters. That is your answer, 1,35,000 liters. Third question is a cuboidal vessel is 10 meter long, 8 meter wide. How high must it be made to hold 380 cubic meters of a liquid? Volume is given, length is given 10, width is given 8. We have to find height. So simply volume of cuboidal वेसल, एक बर्तन है क्यूबाइडल शेप का जिसका वॉल्यूम हमें गिवन है और फॉर्मूला क्या होता है LBH. तो वॉल्यूम इज गिवन 380 मीटर क्यूब एंड L इज लेंथ इज गिवन 10 और विड्थ इज 8. सो 10 into 8 into H we have to find. So we separate H in right side, then 10 8 comes in divide. So 380 upon 10 into 8, 0 0 कैंसिल, 8 से डिवाइड कर देंगे. सो H को हम पहले लिख लें. सो H इक्वल्स टू 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 4 जा 32, 6 इज लेफ्ट 60, 8 7 जा 56, 4 इज लेफ्ट 40, 8 5 जा 40, 4.75 मीटर. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है. फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबाइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूब. तो वॉल्यूम हमें फाइंड करना है और उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई बाय 30. सो फर्स्टली वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल पिट. फोर्थ क्वेश्चन, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट. सो वॉल्यूम इज LBH. नाउ मल्टीप्लाई ऑल द डायमेंशंस LBH. What are the dimensions that are given? 8 6 and 3. 8 6 and 3. So multiply 8
6 and 3. 8 6 are 48 and 48 3 are 144. So it will be 144 meter cube, and cost is given 30 rupees per meter cube. So multiply by 30 means cost of digging the cuboidal pit. The cuboidal pit, जो गड्ढा है क्यूबॉइडल, उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है. तो 144 इंटू 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 0 3 4 जा 12 1 3 4 जा 12 1 13 1 कैरी 3 1 जा 3 and 1 4. So 4,320 rupees. That is the cost of digging the cuboidal pit. Okay, so this is question 4th. Now next question देखिए 5th. So I am erasing it. In 5th question, just wait. 5th question is, the capacity of cuboidal tank is 50,000 liters of water. Find the width of the tank if its length and depth are respectively 2.5 meter and 10 meter. Clear? So volume is given 50,000 liter. So can we convert the unit? Because the volume, if we found by LBH, it came into meter cube. So volume of cuboidal tank, 5th question, volume of cuboidal tank, shape is cuboid, and volume is given 50,000 liter. Its unit is in liter, and we have to convert into meter cube. So how we can convert into meter cube? We can divide it by 1000. So 50,000 divided by 1000. Now it is in meter cube. Here we can write 1 meter cube equals to 1000 liter. Reverse करेंगे तो 1 liter equals to 1 upon 1000 meter cube. Clear? And volume of cuboidal tank we can write LBH, cuboidal LBH. So what are the dimensions given? Here the dimensions are given. 2.5 is length, and width we have to find, and height is given 10. So L 2.5, B we have to find, and H is 10, equals to 000 cancelled. That means we can get 50. Now 2.5 into 10 means 25. So B equals to 50 upon 25. 25 2 is 50. So B equals to 2 meter. Next question, 6th. Question number 6 is, a village having a population of 4,000 persons requires 150 liters of water per head per day. It has a tank measuring 20 meter by 15 meter by 6 meter. For how many days will the water of this tank last? कितने दिन ये पानी चलेगा? तो पहले जो रिक्वायरमेंट है हम उसको फाइंड कर लें. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड फॉर, वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड, रिक्वायर्ड दोनों एक सेम वर्ड है, नीडेड फॉर हाउ मेनी पीपल? 4,000. फॉर 4,000 persons. क्लियर? सो 4,000 के लिए 1 पर्सन के लिए कितना वाटर दिया हुआ है 1 डे के लिए? 150 लीटर. तो 4,000 के लिए फॉर 1 डे, और इसमें इंक्लूड कर दीजिए फॉर 1 डे. दैट इज इक्वल्स टू 4,000 इंटू 150 लीटर्स. 4,000 into 150 liter means we can multiply and convert into meter cube also. So 4,000 into 150 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है. देखिए लीटर था, मीटर क्यूब मीन्स वी डिवाइडेड बाई 1000, देन इन कन्वर्टेड इनटू मीटर क्यूब. नाउ 000 कैंसिल्ड, 154 यानी कि 600 मीटर क्यूब. आप इसे लीटर में भी रख सकते थे, फिर हमें जो वॉल्यूम फाइंड करेंगे उसको फिर लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. बात है कि कहीं पे भी आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक. अब टैंक में कितना वाटर आता है हम उसको फाइंड कर लें. वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक. एक विलेज में एक टैंक है जिसका कैपेसिटी दी हुई है, और 1 डे का हमने नीड निकाल दिया, और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ डेज फाइंड कर सकते हैं. LBH क्या गिवन है? 20, 15 एंड 6. So LBH, that is 20 into 15 into 6. 15 6 is 90. 90 to 20 to 00, 9 to 18. So 1,800 meter cube.
अब 1 डे का रिक्वायरमेंट कितना है 600 मीटर क्यूब, टोटल वाटर इज गिवन 1800 मीटर क्यूब. सो हाउ वी कैन find the number of days? So we have to divide. So number of days, we have to write number of days will the water of this tank last. Number of days for which the water of tank will last, जितने दिन चलेगा. टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक दैट इज 1800 मीटर क्यूब अपॉन 1 डे की रिक्वायरमेंट है 600 मीटर क्यूब. 00 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, so it will be 3 days. Clear? This is the number of days. Now move to next question, that is 7th. A godown measures 40 meter by 25 meter by 15 meter. Find the maximum number of wooden crates, each measuring 1.5 meter into 1.25 meter into 0.5 meter. देखिए इजीली कैलकुलेट हम कर सकते हैं. इसके दो मेथड हो सकते हैं. सेपरेट हम दोनों के वॉल्यूम्स फाइंड कर लें एंड देन डिवाइड कर दें, या फिर डायरेक्टली हम इसे डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई ना करें, कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी. तो हम डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं. ओके, यू कैन फाइंड इट बाई सेपरेटली ऑल्सो. सो नंबर ऑफ क्रेट्स equals to volume of godown भी क्यूब आई डालें अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट भी क्यूब आई डालें. तो इसकी डायमेंशंस को हमने कैपिटल L, कैपिटल B और कैपिटल H एज्यूम कर लिया, और इसकी डायमेंशन को स्मॉल l, स्मॉल b और स्मॉल h. क्लियर? नाउ पुटिंग द वैल्यूज. कैपिटल L मीन्स गोडाउन की मेजरमेंट्स हैं 40, 25 एंड 15. 40 इंटू 25 इंटू 15. एंड क्रेट की मेजरमेंट्स हैं 1.5, 1.25 एंड 0.5. 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5. क्लियर? सो डेसिमल रिमूव करना है 1 डिजिट, 2 डिजिट 3 एंड 1 4. 4 डिजिट है तो यहाँ 4 डिजिट हमने डेसिमल लगा के 0 बढ़ा लिया और इसको रिमूव कर देंगे. क्लियर? ना इजीली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए 25 1 जा 25 एंड 5 जा 125, 5 8 जा 40. क्लियर? नाउ 5 से हम इसे कट कर सकते हैं, 5 3 जा 15 और 4 zeros. 15 से डिवाइड कर सकते हैं, 15 2 जा 30 एंड हाउ मेनी zeros आर लेफ्ट 3. So 2000 into 8, that means 16,000 crates we can store in the godown. Now next question, we move on question number 8. So in question 8, 8th question is a solid cube of side 12 cm is cut into 8 cubes of equal volumes. What will be the side of the new cube? नए क्यूब की साइड फाइंड करनी है. ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज. कन्वर्जन है, एक बड़े क्यूब से छोटे क्यूब्स में ब्रेक किया गया है, तो कन्वर्जन के केस में वॉल्यूम्स सेम रहते हैं. मीन्स अगर हम स्मॉल क्यूब की साइड स्मॉल ए मान लें, कैपिटल जो क्यूब है उसकी साइड हमें 12 गिवन है. सो लेट द साइड ऑफ अ स्मॉल क्यूब, जो स्मॉल क्यूब है उसकी साइड हमने एज्यूम कर ली बी स्मॉल ए सेंटीमीटर. नाउ वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल क्यूब्स हैं, उनका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ 1 लार्ज क्यूब, क्योंकि एक लार्ज क्यूब है उसी से 8 स्मॉल क्यूब्स बनाए गए हैं. तो 8 स्मॉल क्यूब्स का वॉल्यूम, एक क्यूब का वॉल्यूम, एक क्यूब 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 क्यूब इक्वल्स टू लार्ज साइड इज 12, सो 12 क्यूब. 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब और a क्यूब ऑलरेडी है इक्वल्स टू 12 क्यूब. ईजी कैलकुलेशन हो जाएगी इससे. आप डायरेक्ट भी कर सकते हो. 12 का क्यूब 1728, फिर 8 से डिवाइड करेंगे 216 एंड क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो 6 आ जाएगा. बट उसमें इतना सब कैलकुलेशन करना है, यहाँ पे कोई ऐसी कैलकुलेशन है नहीं. 2 का क्यूब भी है, a का क्यूब भी है, मीन्स वी कैन राइट इट 2a का होल क्यूब इक्वल्स टू 12 का क्यूब. सो इफ वी कंपेयर इट then 2a will be equal to 12, means we can write a will be 12 upon 2, that is 6 centimeter.
तो स्मॉल क्यूब की साइड आ गई 6 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज. सो रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज, एरिया ऑफ लार्ज क्यूब टू स्मॉल क्यूब, क्योंकि जो पहले लिखा है उसका पहले लिखना है. ठीक, तो सरफेस एरिया क्या होता है 6a². अब पहले लार्ज क्यूब है तो 6 इंटू लार्ज क्यूब की साइड कितनी है 12, सो 12 का स्क्वायर अपॉन 6a². स्मॉल क्यूब की साइड कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर. ये 6 से 6 कैंसिल हो गया फॉर्मूले वाला. नाउ 12 अपॉन 6 कैन बी राइट एंड इट्स होल स्क्वायर, बिकॉज 12 का स्क्वायर भी है 6 का स्क्वायर भी है. वी नो a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m विल बी a अपॉन b होल पावर m. So 6 1 is 6, 6 2 is 12, so 2 square is 4, 4 upon 1, or we can write in ratio, that is 4:1. Now question last, that is ninth. Ninth question is, a river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 km per hour. How much water will fall into the sea in a minute? Yeah. So width और height given है, एक river है, नदी है, हालांकि क्यूबाइड शेप आपको नहीं दिखती है, बट हम एज्यूम कर लें क्योंकि 1 आवर में दिया हुआ है मैं 2 किलोमीटर फ्लो हो रही है. विड्थ और हाइट गिवन है, हाइट गिवन है हमको 3 मीटर और विड्थ गिवन है 40 मीटर. तो जो बेस है देखो विड्थ ही हो गई. अब लेंथ हमें फाइंड करनी है, तो लेंथ हम वैसे तो रिवर की नहीं फाइंड कर सकते, बट यहाँ पे गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर. तो अगर 1 आवर में हम इसकी लेंथ लिखें तो कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर लेंथ इन 1 आवर. लेंथ इन 1 आवर, 1 आवर में 2 किलोमीटर लेंथ है. तो अगर हम 1 मिनट में लेंथ फाइंड करें, क्योंकि हमें वाटर टोटल फाइंड करना है 1 मिनट के लिए, ठीक है. या हम ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल वाटर हम फाइंड कर लें पहले 1 आवर के लिए, फिर उसे 60 से डिवाइड कर दें तो 1 मिनट के लिए आ जाएगा. लेकिन हम पहले इसकी लेंथ ही कन्वर्ट करेंगे. सो जो टाइम है आपको गिवन है, टाइम इज़ 1 मिनट. इसको ज़रा मैं आवर में चेंज कर दूँगा क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है. तो 1 मिनट को मैं लिख सकता हूँ 1/60 आवर. क्लियर. नाउ लेंथ ऑफ वाटर फ्लो मीन्स रिवर का जो है उसका पानी जो जा रहा है फ्लो, क्योंकि ये डायरेक्ट तो हम नहीं कह सकते रिवर की लेंथ, बट जो वाटर जा रहा है 1 आवर में वो कितना गया 2 किलोमीटर. तो लेंथ ऑफ वाटर फ्लो इन 1 मिनट, दैट इज इक्वल टू लेंथ स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस हो गया लेंथ, क्योंकि हम डिस्टेंस एज्यूम कर लिया, तो इट विल इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. क्लियर. नाउ लेंथ को हमने L कह दिया, स्पीड दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर, तो 2 किलोमीटर पर आवर यूनिट के साथ मैंने लिखा है, इनटू टाइम इज़ 1/60 आवर. दोनों यूनिट सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनल यूनिट हमें क्या मिलेगी किलोमीटर, क्योंकि आर कैंसिल हो गया. तो 2/60 किलोमीटर. ठीक है. नाउ किलोमीटर है, इसको मीटर में अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो 2/60 मल्टीप्लाई बाई 1000, देन इट विल कन्वर्ट इनटू मीटर. नाउ 1010 कैंसिल, 2 3 या 6, सो इट विल 100/3 मीटर. लेंथ हमें मिल गई 100/3 मीटर. विड्थ और हाइट गिवन है, विड्थ कितना है 40 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर. वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर fall into the sea in 1 minute. In 1 minute. That is equals to LBH. L is 100/3, just we found here, into B that is 40 and into H that is 3. So this 3 cancelled. So 100 into 40 means 4000 meter cube. Clear? This is the question 9th. So this exercise is completed now.